present here, I, Akriti, welcomes you all to this workshop organized by Training and Placement Cell of Technical Institute of Advanced Studies for PJMC students in order to enhance the employability of the students. Our guest lecturer for today is Dr. Rajiv Kumar Panda, who is an Associate Professor and Program Coordinator, PG Diploma in Television and Radio Journalism at APJ Institute of Mass Communication. His academic qualifications are his PhD in Journalism and Mass Communication from the Department of Mass Communication, Abanindranath School of Creative Arts and Visual Design, Assam University. Integrated Pre-PhD from the Department of Mass Communication, Abanindranath School of Creative Arts and Visual Design. Welcome you, sir. They invited me to deliver a lecture here. Exactly not a deliver, this is a kind of workshop. And I have been doing this workshop since last 10 years in different parts of India. Be it, Kolkata, Patna, Jaipur, even if, Delhi universities and all. तो वहाँ पे मैं जाता रहता हूँ and, I used to deliver talk regarding filmmaking and all. So my way of teaching is, a bit different. Because I am so interactive. Whatever I have learned, that I have learned from you young students. मैं आप ही से सीखा. I joined PIPS in 2004, Vivekananda Institute of Professional Studies. I was a hardcore professional. I was a cinematographer. I have done my 3 years diploma in cinematography. I was into films. I was into television, serial making and all. And suddenly, I don't know how I became a teacher. मेरे को कुछ पता ही नहीं था. And when I joined PIPS in 2004, literally, I was scared to deliver the lectures. मेरे को ऐसा लगा रात को नींद नहीं होते थे. मेरे को ऐसा लगा यार कल भी जाके जो है ना सुबह सुबह बच्चों को मिलना है, young smart students. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने आप ही लोगों से ये सारी चीजें मैं सीखी. Okay, I will start my session with a story. How many of you have heard story of an eagle? Eagle की कहानी आप में से कितने लोगों ने सुने? Because I want all the participants who are present here to behave like that eagle. जब मैं students को पूछता हूँ कि how are you, तो students कहते हैं कि okay, sir, I am good. I always say, why good? Why not better? Why not best? Why not better than the best? I am from APJ Institute of Mass Communication. Few of your seniors, like Tushar Chadha, Apeksha Khandelwal, and Nitish Buds, they joined our PG Diploma program. We offer postgraduate diploma courses at our institute in different specializations. So I am looking after television and radio. But अच्छा है because everything now onwards is audio visuals. सब कुछ audio visuals. That's why I have started this music also. When I am delivering this talk, so there is a background music. ठीक है. तो ये चीज जो है because in FB, in all the social networking platforms, what you will find a 90%, yeah, even if more than 90% is audio visuals. मैं तो कहता हूँ कि योर एग्जिस्टेंस वो है ही नहीं. हमारी एग्जिस्टेंस विद ऑडियो विजुअल्स थैंक्स टू स्मार्टफोन्स कुछ भी होता है. इवन इफ व्हेन यू सी द एक्सीडेंट विक्टिम, हेल्प करने की बजाय व्हाट यू डू, अपना मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ. एंड इवन इफ आई हैव सीन, जैसे लास्ट ईयर आई विजिटेड ऋषिकेश, वहाँ पे एक इवनिंग आरती हो रहा था. So I saw, almost 90% people, they are recording that live आरती by using their mobile phones. तो 2-4 जो मेरे पास बैठे थे, मैंने उनको बताया कि यार I am from this medium, I belong to this audio visual fraternity. मेरे पास पे I have one mobile phone. They are also doing the live telecast. Then why you are recording that event instead of enjoying that event? उससे क्या हो रहा है कि 10 लोग ऐसे मोबाइल लेके खड़े हैं आपके सामने, तो इवन दे आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शंस और हम लोग उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे.
फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आप मेरे को एक चीज बताइए, हाउ मेनी ऑफ टाइम्स, हाउ ऑफन यू रीविजिट ऑल दीज वीडियोस? वो कहते हैं कभी नहीं। देन व्हाई यू आर कूड़ा कबाड़ा अपने मोबाइल फोन में क्यों भर रहे हो यार? दिस इज जस्ट बिकॉज बिकॉज आई हैव दिस डिवाइस, आई कैन प्ले विद दिस डिवाइस, तो अच्छा लगता है, लोगों को मजा लगता है, लोग इसीलिए वो क्या करते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। ओके, लेट्स कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ ईगल। आपको पता है ईगल की लाइफ कितने दिन की है? ईगल कैन लीव up to 70 years. The eagle is the longest lifespan within its species. 70 साल तक जो होता है ना ईगल जिंदा रह सकता, 70 years. But to reach this age, eagle must make a hard decision. What is the decision? Because during its 40s, what happened? Its long, flexible talons or claws, they are no longer able to grab prey. वो अपना शिकार नहीं कर सकता, 70 साल उसको जिंदा रहना। Then हमेशा जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, it comes in EMIs हैं, एक के बाद दूसरा, एक इंस्टॉलमेंट जाएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा। The next is its long and sharp beak becomes bent, and the third problem is the feathers stuck to each other, making it difficult to fly. उड़ नहीं सकता। इसके बाद करता क्या है ईगल? ईगल के सामने only two options. Number one, either पड़े मर जाओ, waiting for the death. जैसे you all are into BJMC, so you have only two options. Either you be a professional or you change this profession. दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं है भाई। Either you have to be a very good professional, otherwise you have to change this profession, आपको दूसरा कर लो। And journalism is such an option, it will give you lots of n number of opportunities, because advertising is there, event management is there, public relation is there, television is there, radio is there, digital is there, और जर्नलिज्म में तो कोई कहता है कि बिजनेस जर्नलिज्म इज देयर, फैशन जर्नलिज्म इज देयर, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू चूज द राइट पाथ एंड देन यू हैव टू प्रोसीड, दैट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे यू हैव टू एक वो अर्जुन वाली आंख होनी चाहिए, नीचे देख के भाई ऐसा तीर चलाओ, बाण चलाओ। ओके, इसके पास क्या है? टू ऑप्शंस, वन इज डेथ, second one, that's a painful process which lasts up to 150 days, 150 दिन। कुछ लोग तो बोलेंगे कि भाई 150 दिन वो नहीं लेंगे जी, मर जाएंगे। that's the best option। आपको क्या लगता है? ईगल वो पहले वाले ऑप्शन को चूज करता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ईगल will choose the second option which lasts 150 days, 150 5 months, 5 महीने तक। वो प्रोसेस क्या होता है ना, उसमें जनरली ग्रेनाइट स्टोन्स जो होते हैं, दे आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, वहां पे वो फ्लाई करके किसी भी तरीके से वो पहुंच जाता है, वहां पे जाके अपना नेस्ट बनाता है। देन इट नॉक्स इट बीक अगेंस्ट द रॉक एंड इट प्लॉक्स इट आउट कंप्लीटली। जब तक उसका वो जो पेंट वाला जो बीक है ना, जब तक वो निकल नहीं जाता है तब तक वो लगा रहता है। जब वो निकल जाता है, देन द नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर ए न्यू बीक, नए बीक के लिए वेट करता है। जब वो आ जाता है, अगेन प्लॉकिंग आउट द टैलेंस द क्लॉज, उसको वो निकाल लेता है। देन प्लॉकिंग आउट द फीदर्स, ओल्ड एज फीदर्स, वो जब निकल जाता है उसके बाद उसके सब कुछ नया हो जाता है, सर्विसिंग हो गई गाड़ी, you have changed all the parts, and then the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for 30 more years. Why this change is required? Why I am here? Because you all are always listening to your teacher. मैं एक आया था just to create some variety, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, change is required.
हम भी करते हैं ऐसा। हम भी वी आल्सो इनवाइट लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री गेस्ट पीपल, क्योंकि हम ही को सुन सुन के वो बोर हो जाएंगे, तो इसलिए कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नए बातें बताएंगे। एंड इवन इफ दो आई एम ए टीचर, आई ऑलवेज प्रेजेंट ड्यूरिंग इंडस्ट्री गेस्ट लेक्चर। मैं भी बैठ जाता, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। नया नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, उसमें क्या है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर आप लोगों को लगेगा ओके ठीक है भाई इन्होंने कुछ नया बताया, जैसे कुछ लोग हो ना स्टिल दे आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स, मेरे पास भी है एक मोबाइल, पर मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यार थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन से दूर रहते, उससे क्या होता है। तो इसीलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जितनी देर के लिए मैं हूँ उतनी देर के लिए जो है ना जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस लेक्चर्स। ये बड़ा अच्छे मतलब होने जा रहा है। ये तो मैं आपको मतलब आपके लाइफ में तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जस्ट लाइक दिस ईगल। इसीलिए मैंने ये स्टोरी सुना है। व्हाई चेंज इज रिक्वायर्ड? many times in order to survive you have to start new, नए तरीके से शुरू करना पड़ता है, नए तरीके से हमें सोचना पड़ता है। सेकंड sometimes you need to get rid of old memories। धोखा हो गया प्यार में, ठीक है, उसको भूल जाओ। न्यू लाइफ न्यू बिगनिंग, उसके लिए भी आपको ईगल बनना पड़ेगा। उसके बाद क्या है ना, कुछ पास्ट बर्डन्स ऐसे होते हैं, वहां से यू हैव टू लर्न, थोड़ा सा अपने पास्ट से सीख जाओ, लिव इन प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। दिस इज द स्टोरी। कितने लोगों को अच्छा लगा? है इंस्पायरिंग स्टोरी? ऑनेस्टली इंस्पायरिंग है ना? कह दो यार, एक ही बार तो आया हूँ। ओके, दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। नाउ साइलेंस, नाउ द ट्विस्ट इज what I have told you. This is completely a fake story. Absolutely fake. If you will Google, then eagle can live maximum 20 years, not 70 years. But see the power of storytelling. उतनी देर से मैं आपको बांध के रख लिया भाई। कुछ लोगों को तो लगा कि यार this is the lecture, इसके बाद तो जो है ना मेरे को तो ईगल बनना ही पड़ेगा। कि लोगों को ऐसे लगता है कि यस, इससे बड़ा सच्चा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये कुछ भी बोलता है सच के अलावा, इसके मुंह से तो कहीं झूठ निकलता ही नहीं है। विदाउट, क्योंकि यहाँ पे वो रोहिणी कोर्ट है, कोर्ट में जब आप गवाही देने के लिए जाते हो देन यू नीड भगवत गीता, कुरान और तो बट यहाँ पे क्या है कि विदाउट होल्डिंग दोज रिलीजियस बुक्स, फिर भी लोगों को लगता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई कभी भी अपने टीचर के ऊपर भरोसा मत कर। ये है भाई, आई एम आल्सो ए टीचर। ऑलवेज यू हैव टू क्रॉस चेक द फैक्ट्स। बिकॉज देखो मैंने आपको एक कहानी सुनाया, आपको लगा कि भाई सच्चा, ये बिल्कुल सच बात होगा, यू जस्ट डू द गूगल, यू विल फाइंड ये पीपीटी आपको मिलेगा और वहां पे लिखा होगा कि ये जो है ना दिस इज जस्ट फॉर इंस्पिरेशनल पर्पस, इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। दिस इज द डिस्क्लेमर। तो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी अगर होता है, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि फेक न्यूज का जमाना, इतने सारे फेक न्यूज आते हैं कि मतलब हम भी घबरा जाते हैं। जैसे एक लास्ट ईयर व्हेन सी जिनपिंग विजिटेड इंडिया, there was one report in Times of India कि Xi and Modi, Xi Jinping and Modi will meet 6 times in a day। तो किसी ने वो MEET को हटा के MATE कर दिया और वो वाला जो फेक न्यूज हो गया, मतलब वो अभी भी घूमता रहता है। अभी भी if you will find your WhatsApp groups, you will find this kind of fake news। तो इसलिए अभी क्या है कि you have to be very sensible whenever you are telling a story, you have to be very sensible, then only you can say digital media is reliable। अगर आप sensible नहीं है then digital media is not reliable। I told you, I asked you to take a picture of mine and then I told you, then I showed you this Fabical commercial, television commercial। Can anyone explain, is there any relationship? मैंने आपको पहले एक फोटो लेने के लिए बोला and उसके बाद आपको ये वाला वीडियो दिखा। क्या होगा ट्विस्ट? वही जानना है। ओके, उसने पहले से ही बोल दिया, बोला कि देयर मस्ट बी ए ट्विस्ट और वही जानना है। पता नहीं मेरे को ये लगने लगा व्हेन आई आस्क्ड यू
to take a picture of mine, मेरे को ये लगा कि शायद योर टीचर्स या आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, they have applied फेविकल या फेविक्विक in your chair. इसलिए when I asked you to take a photograph of mine, you tried to take the picture from your position on. आप वहीं से बैठे बैठे you thought कि you will be able to create better than the best image. और वो फेविकल शायद आपके कुर्सी में लगा है, कोई वहां से कुर्सी से उठ नहीं सकता, ऑलमोस्ट फिक्स्ड. इसीलिए सबने वहीं बैठे बैठे they tried to click the image. When you are into filmmaking, then always remember to get a good composition. अगर आपको एक अच्छा कंपोजिशन चाहिए, थोड़ा बहुत आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा. You have to do a bit of hard work. Then only you will be able to get good pictures. Otherwise, you will not. तो करना क्या था? When I asked you to take a picture of mine, मैं हमेशा ये सिखाता हूँ. And this I have learned from my institute, my film institute. This is not written anywhere in any books. किसी भी book में आपको ये मिलेगा ही नहीं. This is purely from my experience. What I have seen working with so many people, बड़े सारे लोगों के साथ जब मैंने काम किया, after passing out from the film institute, then I learned कि भाई अगर आपको अच्छा फोटोग्राफ चाहिए, then like you have to choose a proper viewpoint. It means if I am asking you to take a picture of mine, so you have to like explore the proper angle. आप लोग ऐसे बोलते हो ना, sometimes if someone is taking your photograph, आप उसको कहते हो कि ना यार don't take the picture from this side, you just do one thing, you take the picture from this side. Why? Because you know कि if your picture will be taken from that angle, then that pic will be better than the best. वो picture अच्छा लगता है, क्योंकि human face ऐसा बना हुआ है. When you will try to create the oval shape, अंडे टाइप का shape अगर आप ह्यूमन फेस को क्रिएट करने की कोशिश करोगे, then this will look brilliant. Otherwise, भगवान ने तो हमें सर्कुलर बनाया, ट्रायंगुलर बनाया, क्वाड्रेंगुलर बनाया, there are lots of different shapes. But being a photographer, being a cinematographer, being a filmmaker, what you have to do, you have to like choose the best possible viewpoint. Then only आपकी जो रिजल्ट होगा वो बाकियों से अच्छा होगा. नहीं तो अदरवाइज ऐसे तो दिन में ऑन एन एवरेज यू कैप्चर मोर देन 50 फोटोग्राफ्स इन ए डे. 50 फोटोग्राफ तो आप लोग कैप्चर करते होंगे. कितने फोटोग्राफ्स आप देखते हैं? नॉट इवन ए सिंगल. या एक बार आया देख लिया हो गया, उसमें से एक दो सोशल मीडिया के लिए अपलोड कर दिए तो कर दिए, नहीं तो अदरवाइज फिर आप बोलते हो कि यार इतने सारे फोटोग्राफ हो गया, आई हैव टू डिलीट ऑल दिस कूड़ा कबाड़ा ये सब. तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि whenever you are making a film, whenever you are using a camera, don't try to capture the image from your positions. You have to decide the position according to the subject. Subject के हिसाब से जो है ना आपको अपने पिक्चर को कैप्चर करना. So you have to choose the best possible viewpoint. This is number one rule. What is the second rule? Okay, मैंने आपको एक फोटोग्राफ लेने के लिए बोला. You decided the viewpoint. आपने एक viewpoint choose कर लिया. जैसे for example, if I will take the picture of this classroom from this viewpoint, what message I will convey? By including all these empty chairs. Though in my lecture there are almost 100 students. But if I want to show this lecture in a negative way, then what I will do, I will place the camera at this position, including all these empty chairs, showing all those empty chairs at back. उसके बाद बताऊंगा भाई इसके लेक्चर में कोई नहीं आया, बड़े कम बच्चे आए थे इसके लेक्चर पे अटेंड करने. This is the power of viewpoint. But suppose if I will take the picture of this classroom, from this viewpoint, if I will place the camera here, eliminating all those empty chairs, ऐसे लगेगा कि खचाखच भरा हुआ है and no empty space. See the power of positioning of the camera.
It will change the position of the camera. The meaning will be completely changed. इसीलिए जब हम फिल्म बनाते हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं. सेकेंड पॉइंट इज, बड़े सारे टाइम पे हम भूल जाते हैं. जैसे बड़े सारे लोग वहां पे बैठे बैठे आप पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं. किसी एक ने बोला कि साहब मेरी तरफ देखिए, बड़ा अच्छा बोला, मैंने उसकी तरफ देखी. What happened? कि height also plays an important height. आपको पता है यहाँ पे even if I can deliver the lecture sitting here, यहाँ बैठ के भी मैं पूरी कहानी बता सकता हूँ. And in your lectures what happened कि आपके क्लासरूम में हमेशा एक कुर्सी होता है, टीचर को वहाँ पे बैठने के लिए वो वाला प्रोविजन है. But generally what happens कि all your teachers they deliver lecture while standing. वो खड़े खड़े आपको पढ़ाते हैं. Why? At the beginning of the lecture, if you will ask the query to your teacher, तो आपके टीचर आपकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं करते. वो बोलते हैं कि okay, you just do one thing, I am here to teach you the subject. Okay, at the end I will give you 5 minutes for solving your queries. आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए जो है ना, उसी टाइम हम लोग बात कर लेंगे. एंड उसके बाद होता क्या है कि बिकॉज आपने मॉर्निंग में बोले हो कि आई हैव सर्टेन क्वेरीज, व्हेन यू आस्क द क्वेरीज योर टीचर विल गिव यू द आंसर. और जब आंसर देगा टीचर आप कैसे पूछता है, इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड? आप बोलते यस. जैसे ही टीचर बाहर जाता है आप बोलते पता नहीं यार क्या बोल के चला गया, कुछ समझ में नहीं आया. दिस इज द ट्रिक यूज्ड बाय ऑल द टीचर्स इन जनरल. क्यों? ना हाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. इफ आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम दिस हाइट, it means I am at a dominant position, you are at the receiving end. और आप मेरे को कैसे देख रहे हो? ऐसे. तो आप लो एंगल में हो, आप रिसीविंग एंड में हो, मैं एक डोमिनेंट पोजीशन पे हूं. सो आई एम डोमिनेटिंग ऑन यू. आपको लगता है कि यार ये हमारे सर पे हावी हो गया है. और टीचर क्या करता है कि 1 घंटा जब आप ऐसे उसको सुन लेते हो ना, उसके बाद यू फील स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. आपके नेक पे वो दर्द शुरू हो जाता है. फिर टीचर आपको कुछ भी समझा दे, आप ऐसे बिहेव करते हो और ऐसे प्रिटेंड करते हो कि ऐसे यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू अंडरस्टूड दैट कंसेप्ट. और बहुत बिल्कुल समझ में आ गया. जैसे ही टीचर बाहर जाता है उसके बाद बोलते हैं कुछ नहीं समझ में आया. क्योंकि आप ये करते हो कि यार नहीं कैसे जाएगा, थोड़ा सा आप रिलैक्स होके बातें करते रहे. सो दिस अप्लाइज टू योर कैमरा. Whenever you are making a film, always remember, if you are taking the picture, because your camera is the representative of your audience. कैमरे में जो शूट हो रहा है ऑडियंस तो वही चीज देख रहा है. वो भले ही अपने सोफे पे सोया हुआ है, कुछ भी कर रहा है, बट कैमरा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ऑडियंस. कैमरा अगर टॉप एंगल से फोटोग्राफ लिया है तो इट मीन्स कि योर ऑडियंस इज एट द डोमिनेंट पोजिशन एंड योर सब्जेक्ट इज एट द रिसीविंग एंड. एंड इफ यू आर टेकिंग ए पिक्चर फ्रॉम द लो एंगल, इट मीन्स the subject is at a dominant position, your camera is at the receiving end, it means your audience is at the receiving end. So always remember, it is written in the book कि always in 90% of the situations you have to capture the photograph from the eye level. हम बात करते हैं ना कि eye level से फोटोग्राफी लेना है. Why eye level? It means you are creating a cordial relationship between the audience and your subject. इसीलिए हम eye level की बात कर रहे हैं. इसीलिए हम बैठ जाते हैं. जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, अगर खड़े होके वो 2 मिनट बात कर लेता है, आप उसको बोलते हो बैठ जा यार. क्यों ना? इट मीन्स अननोइंगली साइकोलॉजिकली यू आर एट द रिसीविंग एंड एंड योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग. तो वो एक डोमिनेंट पोजीशन पे, आप उसको ऐसे देखते हो, फिर आप बोलते हो यार वी ऑल आर इक्वल, तू बैठ जा. बैठने के बाद यू फील a bit relaxed, you are comfortable, फिर आप उससे बात करते हो. बट whenever you are making a film, you should make a film in such a manner जहाँ पे ऑडियंस को पता भी नहीं लगना चाहिए. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि always take the picture from nose level, not from the eye level. Nose level. Why nose level? There is also a reason. Why I am asking you to take all the pictures from the nose level. Nose level से इसलिए लेना है, it means unknowingly you are putting your audience कहाँ पे? At the receiving end. थोड़ा सा उसको नीचे कर दिए, बोले कि भाई आई एम द फिल्म मेकर, आई एम द स्टोरी टेलर, मैं तेरे को दिखाऊंगा, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला. लेकिन उसको अगर ये चीज उसके मुंह पे बता दोगे, भाई तेरे को कुछ नहीं आता जा, तो वो आइदर आपका चैनल चेंज कर देगा या आपको 2-4 थप्पड़ लगा देगा.
जैसे बस मान लो कि आई एम योर टीचर एंड मैं आपको बड़े प्यार से, देखो ऑल योर टीचर्स ना वो जब गुस्सा करते हैं ना बड़े प्यार से गुस्सा करते हैं, ठीक है, वो हंसते हंसते आपको ऐसी बात कह जाते हैं. देयर इज आल्सो पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. अब बोलते हैं यार पता नहीं, मतलब हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में जो टीचर होते थे वो कभी कभी हमारे माँ बाप को गाली दे देते थे, हमें पता नहीं लगता था. जब टीचर चला जाता था, भाई ये तो हमारे घर वालों को भी गाली दे गया. इट मींस दिस इज पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. आपको ऐसी बात करनी चाहिए, आपको अपने ऑडियंस को ऐसे पोजीशन पे ले आना है जिससे उसको पता ही ना लगे. इसीलिए आई ऑलवेज से कि ट्राई टू कैप्चर द फोटोग्राफ फ्रॉम द नोज लेवल, फ्रॉम नॉट फ्रॉम द आई लेवल.